Today we will study the applications of Bernoulli's theorem. Application of Bernoulli's theorem. बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। क्वेश्चन, फाइंड प्रेशर एट पॉइंट ए in container P and Q। दो बर्तनों P तथा Q में बिंदु A पर दाब ज्ञात कीजिए। There are two containers P and Q in which water is filled, and we have to find the pressure at a point। हमें बिंदु A पर दाब ज्ञात करना है। लेट दिस पॉइंट जस्ट लाई एट द फेस ऑफ ऑरिफिस। यह बिंदु इस होल के जस्ट फेस पर है। Area of orifice small a and surface area of container is capital A। Given surface area of liquid surface capital A is very greater than small a। A is area of orifice। होल का एरिया है स्मॉल है, जो कि वाटर की जो सरफेस है उसके सरफेस एरिया से बहुत ही स्मॉल है। दिस इज अ कंटेनर P एंड इन अनदर कंटेनर a thin tube is connected from orifice। इस होल के साथ में एक पतली सी नली जुड़ी हुई है। इस पॉइंट पर अपन को प्रेशर फाइंड करना है। Let height of liquid column in the container is h in both container। दोनों बर्तनों में द्रव की स्तंभ की ऊंचाई h है and this distance is h/2 और यह दूरी h/2 है। पॉइंट ए की
कंटेनर के बॉटम से डिस्टेंस h/2 है. Now we have to find pressure at point A when hole is open. जब इस होल को ओपन किया जाएगा और वाटर फ्लो होगा, then in that situation what will be the pressure at A? बिंदु A पर दाब कितना होगा? We know that this point just lie on the face of orifice. यह बिंदु इस होल के फेस पर है, therefore pressure at point A will be equals to atmospheric pressure. तो यहां पर जो दाब होगा बिंदु A पर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा. Atmospheric pressure is P0, then pressure at point A will be P0. तो बिंदु A पर दाब वायुमंडल के दाब के बराबर होगा. In the second case, pressure at point A, बिंदु A पर दाब क्या होगा? On applying Bernoulli's theorem, at point A and just at face of tube in container Q. सेकंड कंटेनर में इस पॉइंट और यहां पर बर्नौली इक्वेशन लगा रहे हैं, देन यू नो दैट बाय बर्नौली इक्वेशन P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो G H2. Sum of all the energies of unit volume is constant during the streamline fluid flow. सभी ऊर्जाओं का योग नियत रहेगा हर एक सेक्शन पर. Let pressure at point A is PA. Kinetic energy 1/2 rho V square plus its height with respect to this lower point is h/2. This is the middle point. A is the midpoint of tube. ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो है h/2 is equals to P2 atmospheric pressure at the face of the tube plus 1/2 rho V square plus लोअर एंड पर उसको रेफरेंस पॉइंट लिया है अपन ने, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई. नाउ वी हैव टू टेकन सेम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ए एंड एट दिस पॉइंट. इन दोनों बिंदुओं पर वेग अपन ने समान लिया है बिकॉज बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण से V1 बराबर V2, area of section are same, A1 V1 is equals to A2 V2, दोनों के एरिया सेम है, therefore V1 is equals to V2. ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. Then pressure at point A in tube Q will be P0 minus rho G H/2. यानी इस पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो G H/2 कम होगा. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. एंड इफ यू
we have to find velocity of liquid column in the container, then we can apply Bernoulli theorem at this point and at any point of the tube. कोई भी दो बिंदुओं के बीच में आप बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं. तो इस पॉइंट पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में रो GH/2 से कम होगा. Second question, there are two orifices in container having very small area of cross section with respect to surface area of fluid. Then find ratio of velocities of efflux through orifices A and B. छिद्रों A तथा B से बहिस्राव का वेग ज्ञात कीजिए, जबकि इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बर्तन की तुलना में बहुत कम है. In problem it is given that क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कंटेनर की वॉल पर दो होल हैं, उनके थ्रू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का रेशियो बताना है. This is the hole A and this is hole B. इन दोनों ऑरिफिसेस से जो लिक्विड फ्लो होगा उसकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? Let depth of first hole be h/2 and depth of second hole from surface of liquid be h. Diagram is given in the question. Then on applying Bernoulli equation, on the surface of liquid and orifice B
applying Bernoulli's equation at point P and B. P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equals to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. Pressure just on the surface of fluid is equals to atmospheric pressure. वहां पर दाब वायुमंडल का दाब है एंड 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस हाइट विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष इसकी ऊंचाई है h/2 रो जी h/2 बराबर here pressure is also equal to atmospheric pressure just on the face of orifice. इस होल के फेस पर जो दाब होगा वो भी एयर के प्रेशर के इक्वल ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. Therefore P2 is equals to P naught and V2 we have to find, and that this is the reference point, so its potential energy is taken 0. P naught से P naught cancel, then rho V1 square, रो कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, V1 square on multiplying by 2 GH is equals to V2 square V1 square GH plus V2 square. This is a relation between velocities of depression of fluid in the container and emerging out from the orifice. इस बिंदु और इस बिंदु से जो द्रव प्रवाह होता है द्रव का, वहां पर उनके वेग हैं. नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण से A1V1 is equals to A2V2. P पॉइंट पर आपने सरफेस एरिया लिया है A1, then we substitute the value of V1 because we have to find V2. V2 square is equals to A2V2 upon A1 square plus GH. Now area A1 is very greater than A2. कंटेनर का एरिया ओरिफिस के एरिया से बहुत ज्यादा है, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म, देन V2 is equals to अंडर रूट ऑफ GH. ये अपन पहले भी डिराइव कर चुके हैं कि अगर ओरिफिस का एरिया बहुत स्मॉल है, देन इन दैट सिचुएशन velocity of efflux will be V equals to under root 2GH, where H is depth of orifice from surface of liquid. द्रव की सतह से उसकी गहराई है, तो यहाँ पर इसका एरिया बहुत ज्यादा है, सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स थ्रू B से बहिस्राव का वेग क्या होगा, तो H की वैल्यू h/2 रख देंगे, तो अल्टीमेटली आंसर वही आ रहा है. बट दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन. इससे बिल्कुल सही मान आएगा वेग का, एंड दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू, ये लगभग मान है. अगर आपसे पूछा है कि यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसका रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, देन यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ऑरिफिस इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन बराबर A इंटू V. इसका एरिया अपन ने यहां पर एरिया लिया था, सपोज इफ एरिया इज A, अगर इसका क्षेत्रफल A दिया हुआ है एंड वेलोसिटी इज V, देन रेट ऑफ फ्लो विल बी, प्रवाह की दर होगी A इंटू अंडर रूट GH मीटर क्यूब पर सेकेंड. नाउ velocity of efflux
एट पॉइंट ए पर बहिस्राव का वेग क्या होगा, अंडर रूट 2gh। यहां से यहां तक की जो डेप्थ है इसकी h है। ये a पर वेलोसिटी आ गई और ये b पर वेलोसिटी है। देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड emerges out from these two holes will be under root 2gh upon under root gh is equals to root 2. This is the ratio of velocity. ये दोनों बिंदुओं पर वेगों का अनुपात आ जाएगा होल के थ्रू जो लिक्विड बाहर निकल रहा है। ये प्रॉब्लम थी बेस्ड ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौली के समीकरण पर आधारित सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है find ratio of velocity of efflux through holes A and B in following diagram। चित्र में A तथा B से प्रवाहित द्रव के वेगों का अनुपात क्या होगा। Now there are two fluids are filled in the container having density rho and 2 rho. These are immiscible liquids. अघुलनशील तरल है। And there are two holes A and B whose area of section is very small, जिनका क्षेत्रफल बहुत कम है। Density of upper liquid is rho and density of lower liquid is 2 rho. Immiscible liquid है, अघुलनशील द्रव है। Depth of orifice A is h by 2 and depth of the second orifice is 3h by 2। यहां से यहां तक की जो डेप्थ है वो 3h by 2 है इस सरफेस से। एंड 3h by 2 minus h by 2 is h and this distance is h by 2. Then we have to find velocity of efflux through A. A से जो लिक्विड बाहर निकलेगा उसका वेग क्या होगा। On applying Bernoulli's theorem at point P and just on the face of orifice, applying Bernoulli's equation at point A and P, या पहले P लिख देते हैं, P and A। P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equals to P2 plus
हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट रो V1 स्क्वायर एंड हाइट रिलेटिव टू A इज h/2 रो जी h/2 P2। यहां भी प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल P नॉट प्लस हाफ रो VA स्क्वायर रेफरेंस पॉइंट है, P नॉट से P नॉट कैंसल। Then you know that by equation of continuity this value is very small because area of surface area of the fluid is very greater than the area of cross section of orifice। तो इसको अपन निगलेक्ट कर देते हैं उसके कंपैरिजन में, अगर उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है इसके कंपैरिजन में। V1 इज वेरी स्मॉलर देन V2। यहां से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है उसके कंपैरिजन में इसके नीचे आने की स्पीड बहुत कम है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है टैप के कंपैरिजन में। तो यहां पर ये टर्म निगलेक्ट करने पर रो जी H2 इज इक्वल्स टू 1/2 रो VA स्क्वायर, रो से रो कैंसल, देन VA इज इक्वल्स टू √GH। अगेन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, फिर से बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। Now we are applying the Bernoulli equation at point P and B. Again at P and B. फिर से P और B पर लगाएंगे। P पर प्रेशर है P नॉट प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस B के कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी है 3h/2 रो G 3h/2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, सॉरी इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। देयर आर टू डिफरेंट लिक्विड्स हैविंग डेंसिटी रो एंड 2 रो, सो वी हैव टू कंसीडर सेपरेटली। प्रेशर एट पॉइंट P इज P नॉट और उसकी वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है, सो वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी स्मॉल V1 स्क्वायर प्लस रो जी, यहां से इसकी यहां तक की जो हाइट है, यहां से यहां तक की हाइट, अब देखिए ये पूरा 3h/2 है और ये h/2 h हो गया, तो ये रिमेनिंग हाइट इज आल्सो h/2, ये भी h/2 होगी, देन h/2 ये पूरा हो गया h। तो फर्स्ट फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रो जी h प्लस, और यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक डेंसिटी इसकी 2 रो है, 2 रो जी h/2 इज इक्वल्स टू एट पॉइंट B प्रेशर P नॉट प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 7 P नॉट से P नॉट कैंसल, दिस टर्म इज वेरी स्मॉल। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी V1 इज वेरी स्मॉलर देन V2, V1 की वैल्यू बहुत कम है, देन रो कॉमन है कैंसिल हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, देन VB इज इक्वल्स टू GH प्लस रो G प्लस रो G, 2 रो G और यहां से इस 2 का मल्टीप्लाई किया 4 रो G H, रो से रो कैंसिल, √4GH, ठीक है, H प्लस H 2H और इस 2 का इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, देन VB इज इक्वल्स टू 2√GH। देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट A एंड B, A और B पर वेगों का अनुपात क्या होगा, VA अपॉन VB इज इक्वल्स टू √GH अपॉन 2√GH इज इक्वल्स टू 2। दिस इज द वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट A। तो इस केस में आप जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो
तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेपरेटली कंसीडर करना है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेपरेटली लेना है। क्लियर? दिस इज वन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली के समीकरण पर आधारित ये अलग टाइप का सवाल था, इन विच टू और मोर देन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर फिल्ड इन अ कंटेनर, जिसमें बर्तन में दो या दो से अधिक द्रव हैं। वेंचुरीमीटर Venturi मापी, this is a device by which we can measure the rate of flow of liquid। इसके द्वारा हम तरल के प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं, that is Q। एक सेकंड में कितने मीटर क्यूब या कितने लीटर वॉल्यूम फ्लो हो रहा है लिक्विड का ट्यूब के थ्रू, या फाइंड कर सकते हैं। इन द वेंचुरीमीटर there are two sections of tube। नली के दो परिच्छेद होते हैं। Let tube is horizontal। माना कि नली क्षैतिज है, so its potential energy taken 0। इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 मान सकते हैं। A pitot tube is connected from these two sections। एक पिटोट ट्यूब लगा देंगे, which is also based on the Bernoulli's theorem, जो कि बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित एक युक्ति है। पिटोट ट्यूब विच मेजर प्रेशर डिफरेंस, जो कि दाबांतर को नापती है। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, द्रव का प्रवाह अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। Let liquid is flowing from left to right। Then we have to find rate of flow of liquid। द्रव के प्रवाह का वेग ज्ञात करना है, कितना लिक्विड यहां से इमर्ज हो रहा है, कितना लिक्विड यहां से बाहर निकल रहा है। यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है, तो पिटोट ट्यूब में जहां प्रेशर ज्यादा है वहां लिक्विड कॉलम डिप्रेस्ड होगा। लेट दिस इज H1। देन प्रेशर डिफरेंस विल बी एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इन दोनों ट्यूब के बीच का जो दाबांतर होगा वो होगा रो जी H1। रो इज डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, इस तरल का घनत्व है रो। वो प्रेशर डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं। देन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन ए एंड बी, बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन ए एंड बी। ए तथा बी पर बर्नौली का समीकरण लगाने पर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। That pressure at section A is PA प्लस PA मान लो, P1 ले लो, ठीक है, P1 ले लेते हैं। P1 प्लस हाफ रो velocities
V1. Tube is horizontal, so its potential energy can be taken 0. P2 plus half rho V2 square plus 0. सेम लेवल पर है बोथ ट्यूब्स, होरिजेंटल रखी हुई है ऐसी, so their potential energy will be 0. Then P1 minus P2 is equals to 1 by 2 rho common V2 square minus V1 square. P1 P2 वाली टर्म को इधर लाके माइनस कर दिया, ये टर्म हो जाएगी माइनस हो जाएगी 1 by 2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. Then P1 minus P2 is equals to 1 by 2 रो P1 minus P2 की वैल्यू अपन रो जी h, यहाँ पर रो जी h1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य समीकरण लगाने पर इसका एरिया है A1 V1 is equals to A2 V2. This is nothing but the rate of flow of fluid in 1 second. 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले तरल का आयतन है ये. Then V1 is equals to Q upon A1 and V2 is equals to Q upon A2. Q by A2. Therefore, on substituting these two values, ये मान इस समीकरण में रखने पर P1 minus P2 is equal to 1 by 2 rho Q upon A2 square minus Q upon A1 square. तो यहां से आ जाएगा P1 minus P2 is equals to 1 by 2 rho Q square. Q square common 1 by 2 A2 square minus 1 by 2 A1 square. Then P1 minus P2 is equals to 1 by 2 rho Q square A1 square minus A2 square upon A1 square A2 square. Then Q square is equals to 2 into P1 minus P2 upon rho into A1 A2 upon A1 square minus A2 square. This is the rate of flow of liquid through the tube. ट्यूब से प्रवाहित होने वाले 1 सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो होगा उसका वॉल्यूम आ गया ये. Here A1 is taken greater than A2. A1 का मान A2 से बड़ा है. And if A2 is greater than A1, then we take P2 minus P1. तो यहाँ पर P2 minus P1 हो जाएगा. This is the application of Bernoulli's theorem. ये बर्नौली के प्रमेय का एक अनुप्रयोग है जो अपन ने डिस्कस किया है यहाँ पर. Now we can measure A1 and A2. A1 और A2 का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से. इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है ट्यूब्स के. वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन इक्वेशन. ये मान A1 A2 के रख देंगे, देन वी गेट Q. Q का मान आ जाएगा. एंड P1 minus P2 is equals to H rho G. P1 minus P2 की जगह H rho G रखेंगे, then we can find P1 minus P2, and on substituting these all values in this equation, then we get rate of flow of fluid. तरल के प्रवाह की दर आ जाएगी. This is a Benchrometer. Now another example of Bernoulli's equation. Siphon
This is also based on बर्नौली इक्वेशन। ये भी बर्नौली के प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। एंड इट वर्क ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साइफन वायुमंडल के दाब के कारण कार्य करता है। बाय हेल्प ऑफ साइफन we can pour the fluid liquid in one container to another container। साइफन से हम किसी तरल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल सकते हैं। A U tube is collected from both the container and height of one container should be greater than second container। एक बर्तन की ऊंचाई दूसरे बर्तन की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। जिस कंटेनर से आपको लिक्विड पॉर करना है दूसरे में, उसकी हाइट ज्यादा रखनी है, उसको ऊपर रखना है, और जिसके अंदर आपको लिक्विड फिलअप करना है उसको नीचे रखना है। दिस इज द कंटेनर ए एंड दिस इज कंटेनर बी। When you create vacuum in the tube, जब आप नली में निर्वात उत्पन्न करेंगे, that is we suck the air, इसकी हवा को खींचेंगे, then a steady flow is sustained, इसमें एक स्थिर प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। इसको ले लेते हैं आप, एक पॉइंट ले लिया इसको मैंने ए, दिस इज द कंटेनर पी एंड दिस इज द कंटेनर क्यू, एंड दिस इज द अनदर पॉइंट बी, एंड this is the third point C and here D, and let this point is Q. Then we have to find pressure difference at two different points and also find the rate of flow of liquid through the tube. Let सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब इज वेरी स्मॉल, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बहुत कम है। व्हाट विल द प्रेशर डिफरेंस एट पॉइंट ए एंड बी? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बाय बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली के समीकरण से Pa प्लस हाफ रो, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ले ली अपन ने 1/2 रो Va² प्लस पोटेंशियल 0। बी पॉइंट पर प्रेशर Pb प्लस हाफ रो Vb² प्लस रो G। लेट हाइट ऑफ B from A be h1 and this height is h2, rho G h1. Kinetic energy will be same. Velocity at point A is equals to velocity at point B is equal to velocity at C is equals to velocity at D. बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण से a1 v1 is equals to a2 v2, a1 v1 बराबर होता है a2 v2 एंड एरिया ऑफ सेक्शन सेम एवरीवेयर।
सभी जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नली का समान है। एक सेकंड में जितना फ्लूइड यहां से फ्लो हो रहा है उतना ही यहां से निकलेगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वेलोसिटी सेम होगी, डेंसिटी भी सेम है, ये कैंसल। देन प्रेशर डिफरेंस एट ए एंड बी, ए और बी बिंदुओं पर जो दाबांतर होगा वो होगा रो जी एच वन, दैट इज पी ए शुड बी ग्रेटर देन पी बी। यहां प्रेशर ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। ये आ गया आपका प्रेशर डिफरेंस ए और डी के बीच में, यानी यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। देन लिक्विड राइजेस अप, द्रव ऊपर चढ़ जाएगा। बट वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि H1 शुड बी स्मॉलर देन बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ दिस लिक्विड। H1 का मान इसकी बैरोमेट्रिक ऊंचाई से सदैव कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बैरोमेट्रिक हाइट फॉर मर्क्यूरी इज 760 mm। ज्यादा से ज्यादा वैक्यूम नली में क्रिएट करने पर जो पारा है वो इतनी हाइट तक चढ़ सकता है। तो अगर यहां पर मर्क्यूरी है तो ये हाइट 760 mm से कम होना चाहिए। एंड फॉर वाटर बैरोमेट्रिक हाइट इज 10.3 मीटर अप्रोक्स। पानी के लिए बैरोमेट्रिक ऊंचाई लगभग 10.3 मीटर होती है। सो दिस हाइट शुड बी लेस देन 10.3 मीटर, तभी वर्क करेगा साइफन। H1 इज द बैरोमेट्रिक हाइट, H1 इसकी बैरोमेट्रिक ऊंचाई है। What will be the pressure difference at B and C? इसी टाइप से आप B और C पर प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे तो हाइट का डिफरेंस यहां भी H1 ही है। और इस सिचुएशन में C पर प्रेशर B से रो जी H1 ज्यादा होगा, क्योंकि PB प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू PC। देयरफॉर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन PC एंड PC और PB के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो होगा रो जी H1। एंड व्हाट विल बी द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन B एंड D? B और D के बीच का प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? यहां प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। हियर प्रेशर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे, देन PB प्लस रो जी H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू PD। Then pressure at D should be greater than pressure at B, rho G H1 plus H2। Then rho G H1 is PA minus PB, PA minus PB is equal to rho G H1। तो यहां से PB की वैल्यू रख देते हैं। PB की वैल्यू क्या आएगी? PA माइनस रो जी H1 इज इक्वल टू रो जी H1 प्लस H2 प्लस रो जी H1 से रो जी H1 कैंसल। देन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन D एंड A इज इक्वल टू रो जी H2 एंड प्रेशर एट D should be greater than pressure at A, and pressure at D is equals to atmospheric pressure, वायुमंडलीय दाब के बराबर। यहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां प्रेशर कम होगा और यहां प्रेशर A से ज्यादा होगा। लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब, फ्लो हो जाएगा और बाहर प्रेशर ज्यादा है, यहां प्रेशर कम है। यहां प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल है और इधर प्रेशर कम है। यहां प्रेशर, यहां से हाई प्रेशर से लिक्विड बाहर निकलेगा। एंड वैक्यूम इज सस्टेन्ड इन द ट्यूब इन द एब्सेंस ऑफ लिक्विड। यहां पर एक निर्वात उत्पन्न हो जाएगा और लिक्विड का एक स्टडी फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इसमें। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ये बर्नौली के प्रमेय का एक उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले कि यहां और यहां प्रेशर क्या होगा, तो
इस पॉइंट और इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा P और D पर, प्रेशर एट पॉइंट P इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D। P और D पर दाब बराबर होगा, P और D पर दाब इक्वल बराबर होगा। What will be the velocity of liquid emerges out from the tube? नली में से जो द्रव बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। Then on applying Bernoulli equation at point P and D, Bernoulli's equation at P and D, P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equals to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. Pressure at P equals to atmospheric pressure P naught plus 1 by 2 rho V1 square। इसके कंपैरिजन में इसकी हाइट, या हाइट का डिफरेंस है H2। rho G H2 is equals to just at the face of tube pressure equals to atmospheric pressure 1 by 2 rho VD square plus 0। P naught से P naught cancel। V1 the speed of fluid in the container, V1 is very less than VD is equals to VA is equals to VB is equals to VC। Then on neglecting V1 को निग्लेक्ट करने पर ये 2 ऊपर आएगा, then VD is equals to under root of 2G H2। ये ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड आ गई। एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड? द्रव के प्रवाह की दर क्या हो जाएगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू V, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आपको इस पॉइंट पर लिक्विड किस स्पीड से नीचे जा रहा है वो चाहिए, देन वी कैन नॉट निग्लेक्ट V1 को नगण्य नहीं मान सकते एंड अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण लगाएंगे। वी अप्लाई द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य समीकरण अप्लाई करेंगे। ये था आपका साइफन which is very important for competitive exams। Now laminar fluid flow, लामिना प्रवाह क्या होता है द्रव का? This is just like a streamline fluid flow। यह भी धारा रेखीय तरल के प्रवाह की तरह ही होता है। This is a particular situation of streamline fluid flow। यह धारा रेखीय तरल प्रवाह की एक का स्पेशल केस है। In which in laminar flow we can consider that all the liquids of layers are very thin। द्रव की सभी परतें बहुत पतली है और एक स्मूथ फ्लो हो रहा है लिक्विड का। Then maximum velocity of fluid at which flow remains laminar is known as critical velocity। उसे हम क्रांतिक वेग कहेंगे। वह अधिकतम द्रव का वेग जहां तक उसका प्रवाह लेमिनर बना रहता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग कहलाता है। लेट आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, इसमें से प्रवाहित हो रहा है, तो वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जहां तक फ्लो लेमिनर होगा, इट डिपेंड अपॉन वीसी की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एंड directly proportional to coefficient of viscosity eta and inversely proportional to rho and d।
रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डी द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के ईटा अपॉन रो इनटू डी। दिस के इज नोन एज रेनॉल्ड्स नंबर। इस के को रेनॉल्ड की संख्या कहते हैं। इफ के इज लेस देन 2000 देन फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन। तो प्रवाह धारा रेखीय होगा, लेमिनर बना रहेगा। इफ के लाई बिटवीन 2000 एंड 4000, के 4000 और 2000 के बीच है, देन फ्लो में बी स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। प्रवाह धारा रेखीय भी हो सकता है, विषुब्ध भी हो सकता है। एंड इफ के इज ग्रेटर देन 4000 देन फ्लो ऑलवेज टर्बुलेंट। प्रवाह जो है वो विषुब्ध होगा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर और इसमें फ्लूइड डायनामिक्स डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ वी विल डिस्कस सरफेस टेंशन इन द नेक्स्ट क्लास।